آپ دیکھ رہے ہیں بھارتی میڈیا نیوز چینل۔ میں آپ تمامی حضرات کا جتنے بھی الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذمہ داران ہیں مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں تشریف لائے اور سنی دعوت اسلامی کی جانب سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تقریباً کم و بیش 22 سالوں سے سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی آزادی تحریک سنی دعوت اسلامی کا یہ معمول ہے کہ ہر سال ذکر تاجدار کربلا کے عنوان سے شہر لیول پر بڑے احتشام کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر تاجدار کربلا کی محفل منعقد کرتے ہیں، لیکن لاک ڈاؤن ہے اور کورونا کی وبا کی وجہ سے مذہبی سیاسی ساری تقریبات اس وقت موقوف ہے، تو یہاں پر ہم لاک ڈاؤن کا خیال کرتے ہوئے بہت مختصر سی محفل مسجد میں کر رہے ہیں اور آن لائن اس کو نشر بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ذکر تاجدار کربلا کا مقصد صرف واقعات کربلا کو سنا کر دلوں کو بہلانا نہیں ہے، بلکہ ایک پیغام دینا مقصد ہے۔ کربلا ایک خوبصورت پیغام ہے۔ مایوسیوں کے دور میں امید کے کرن کا نام کربلا ہے۔ خوف کے ماحول میں شجاعت، دلیری اور بہادری کا نام کربلا ہے۔ جب کرپشن اور اہل اقتدار ظلم کریں تو ظلم کے خلاف کیسے ڈٹا جائے، کیسے اٹھا جائے اور اپنی آواز کو کیسے بلند کیا جائے، اس کا نام کربلا ہے۔ کربلا کا نام ہے مٹ جانا لیکن ضمیر کا سودا نہ کرنا، یہ کربلا ہے۔ نئی نسل کو از سر نو کربلا کی تاریخ یاد دلانے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری قوم کے اندر شجاعت، بہادری، اولو العزمی، بلند ہمتی پیدا ہو۔ کربلا میں دو کردار ہیں، ایک حق و صداقت کا، دوسرا جھوٹ اور کذب کا۔ ایک طرف شراب کی محبت پائی جاتی ہے، دوسری طرف شراب سے نفرت پائی جاتی ہے۔ ایک طرف ظلم اور زیادتی ہے، دوسری طرف صبر اور استقامت ہے۔ ایک طرف عیسیٰ اور قربانی کا جذبہ ہے، دوسری طرف ظلم اور زیادتی ہے۔ تو قوم کو یہ بتانا ہے کہ بلندی اور سربلندی ہمیشہ صبر کی ہوئی، استقامت کی ہوئی، صداقت کی ہوئی، اولو العزمی کی ہوئی، شجاعت کی ہوئی، بلند ہمتی کی ہوئی۔ اور پھر خاص بات یہ ہے کہ کربلا میں ایک طرف محبت ہی محبت ہے اور دوسری طرف نفرت ہی نفرت ہے۔ جب بھی محبت اور نفرتوں کی جنگ آپس میں ہوتی ہے تو جیت ہمیشہ محبتوں کی ہوتی ہے، نفرتوں کی نہیں۔ یزید لوگوں کے دلوں میں کبھی جگہ نہ پا سکا، لیکن محبتوں کے علم بردار امام حسین آج بھی ہر دل میں زندہ ہے، بلکہ ہر مذہب میں زندہ ہے، اور اگر یہ کہا جائے کسی نہ کسی اعتبار سے ہر مکتبہ فکر بھی آج امام حسین کا نام لیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہی پیغام عام کرنے کے لیے تاریخ کربلا ہر سال بیان کی جاتی ہے تاکہ نوجوانوں کے اندر جذبہ کو صداقت پیدا ہو، دین کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو۔ اس مقصد کے تحت کربلا کے واقعات بیان ہوتے ہیں اور یہی ہماری کاوش ہے، اور اس میں ہم بہت کامیاب بھی الحمدللہ کہ ہر سال کئی جوان اپنے چہروں پہ داڑیاں سجاتے ہیں، نماز کا عہد کرتے ہیں، شراب سے توبہ کرتے ہیں، برائیوں سے توبہ کرتے ہیں، اور بعد میں جب وہ اس کی رپورٹیں ہمیں ملتی ہیں تو دل بڑا مسرور ہوتا ہے۔ اور ویسے کربلا کے واقعات میں دقت بھی ہے، محبت بھی ہے، اس سے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ تو دل کی نرمی کے بعد جب ان کو کوئی پیغام پیش کرتے ہیں تو پھر وہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ آپ محرم امام کی مجالس منعقد کرتے ہیں، اس درمیان کوئی ایسا تلخ تجربہ یا کوئی ایسی بہت زیادہ شدت سے مخالفت یا کوئی جیسے کوئی تنازعاتی بات جو آپ کے ناگوار گزری ہو، یا کوئی مانے میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے، یا کوئی
क्योंकि आम तौर पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तनाज़े का सबब बन जाती है। तो इस गए गुजरे 22 साल में कोई ऐसा बात हुई है आपके साथ, इससे कुछ आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा या कुछ और तकालीफ आई हो? खलील अब्बास साहब जो माशाल्लाह बड़े हमारे पुराने सहाफ़ी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा खूबसूरत सवाल किया है। इस पर मेरी अर्ज़ ये है कि जब भी हम कोई अच्छा काम करने के लिए निकलते हैं तो हर कदम पर हमें तकलीफ़ें आती हैं। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक मक्के की सरज़मीन पर दावत का काम शुरू नहीं किया था तो अहले मक्का आपको सादिक और अमीन के लक़ब से जानते भी थे और मानते भी थे, और अपनी अमानतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते थे। लेकिन जब दावत का काम शुरू किया तो वही लोग मुखालिफ हो गए, पत्थर मारने लगे। शाब अबी तालिब के अंदर 3 साल तक के नबी पाक के घर वालों को कैद करके रखा। तो बात यह है कि जब भी हम कोई अच्छा काम लेकर उठेंगे मुखालफतें तो होगी, और बल्कि आपके हक़ पर होने की दलील यही है कि लोग आपके मिशन की मुखालफत करें। तो इन 22 सालों के अंदर बहुत सारी यानी कि ऐसे जो मंजिलें आई कि केस भी किए गए और मुखालफतें भी भरपूर हुई, मगर यह है कि मोमिन की शान है कि वो उकाबी ज़िंदगी जीता है। और उकाब की शान ये होती है ना कि वो मौसम से भागने की बजाय, बारिश है, सर्दी है, गर्मी है, इससे भागने की बजाय वो मौसम को इंजॉय करता है, यही उसकी शान होती है। तो ऐसे ही हुआ कि जब जब मुखालफतें बढ़ती गई तो महफिल का रंग भी निखरता गया और महफिल मजबूत होती गई, इसलिए कि ये महफिल का इनेकाद जो वो ज़ाती तशहीर के लिए नहीं था और ना है, अल्लाह जानता है। इसका एक मकसद है कि अल्लाह के दीन की शात हो। इसीलिए उस दिन से आज तक पहली महफिल जब हमने रखी थी 22 साल पहले 97 या 98 के अंदर, तो कमालपुरे में, आप जानते हैं कमालपुरे में मदरसा रबिया नूरुल उलूम है, उसकी गली में हम लोगों ने रखा था और वहाँ तकरीबन 50-60 लोग मौजूद थे, 50 से 60 लोग मौजूद थे। पूरी वो कुल कायनात उस जलसे की हुई थी, वहाँ से आगाज़ हुआ। और गुज़िश्ता साल आपने एटीटी का आशूरा का जलसा देखा होगा कि पूरा एटीटी का ग्राउंड भर कर ही बाहर लोग कहाँ तक थे। तो और फिर आज देख रहे हैं कि आप लॉकडाउन में हम लोग कमरे में बैठकर बयान कर रहे हैं। तो यानी ये महफिल का मकसद पब्लिक नहीं है, बल्कि इस महफिल का मकसद मिशन है और जो हो रहा है। तो बड़े तल्ख तजुर्बात हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिन जिन लोगों ने मुखालफत की है, मैं आप लोग के तवस्सुत से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ कि उन्होंने मुखालफत करके हमें मोहतात बनाया, हमें मजबूत किया। और इसलिए कि जब हवाएं मुखालिफ चलती है तो परवाज़ जो है वो थोड़ा सा तेज़ करनी पड़ती है, तो उससे पर ही मजबूत होती है। तो ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। और हमारे मोहल्ले के शायर हैं, बहुत अच्छे शायर, वाहिद अंसारी साहब का बहुत अच्छा शेर है, मुझे याद आता है कि जलने वालों को खुदा रखे सलामत वाहिद, जितने जलते हैं मेरे फ़न को जिला मिलती है। इसी तरह करबला के बाद आप देखें, आमतौर पे अगर किसी की बाइक हमारी बाइक से टकरा जाए तो भी हम बरसों उससे नाराज़ रहते हैं। किसी ने एक मरतबा गाली दे दी तो कई दिनों तक झगड़ा चलता रहता है। किसी ने हमारी बात नहीं मानी तो कई दिन तक कि हमारे दिल में उसके लिए बुक्स पीना होता है। लेकिन कितना बड़ा हादसा हुआ था, और उस पूरे हादसे का जो ज़िम्मेदार जो लोग थे यजीद के अलावा, उसमें से एक नाम है इब्न ज़ियाद का, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का, इसी तरह एक नाम है शिम्र का, ठीक है। तो जिस वक्त मुख्तार सक़फ़ी बदला लेने के लिए उठा और उसने बदला लेना चाहा, तो इब्न ज़ियाद और शिमर इस तरह के जो ख़ास लोग थे वो छुपते फिर रहे थे। रिवायतों में आता है, तारीख़ में आता है, किसी ने इब्न ज़ियाद का नाम लिखा, किसी ने शिमर का नाम लिखा, लेकिन ये दोनों बहुत अहम किरदार थे शहादत के मामले को लेकर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक सफ़र में थे और जंगल में आपका खैमा था, और शिमर या इब्न ज़ियाद भागे भागे फिर रहे थे, और उन लोगों की मुलाकात इमाम ज़ैनुल आबिदीन से होगी। तो उनमें से किसी एक ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या आप पानी पिला सकते हैं? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो इमाम हुसैन के बेटे हैं, बड़े साहबजादे हैं, और वो करबला के चश्मदीद गवाह हैं, आईनी शाहिद में से हैं। उन्होंने रिवायतें बयान की करबला की।
تو امام زین العابدین نے اس کو پانی دیا، ایک کٹورے میں دیا، پھر اس نے کہا اس سے پیاس نہیں بجھتی ہے، کیا آپ ایک بار اور دے سکتے ہیں؟ تو دوسرا کٹورا بھی دی، پھر اس نے کہا اس سے پیاس نہیں بجھ سکتی، آپ اور دے سکتے، تو پورا مشکیزہ دے دیا۔ جب وہ پانی پی کر اس کو چین ہوا تو اس نے کہا آپ نے مجھے پہچانا؟ اس کے ذہن میں بات آئی کہ میں نے پانی مانگا تو انہوں نے دے دیا، شاید پہچانا نہیں ہو، آپ نے مجھے پہچانا؟ فرمایا ہاں میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں کہ آپ ہی لوگوں نے تو پانی بند کیا تھا، لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے تھے، میرے معصوم بھائی 6 مہینے کے امام حسین کے بیٹے کو تم نے ذبح کیا تھا، بیویوں کی چادریں چھینی تھی، میں تمہیں پہچان گیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ پہچان گئے، اس کے بعد بھی آپ نے پانی دینے سے انکار نہیں کیا۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا یہی تو فرق ہے، تم نے جو کیا وہ تمہارے اخلاق تھے اور ہم نے جو کیا یہ ہمارے خاندان کی لی تھی۔ تو یہ ہے کربلا کا پیغام، جو کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر ہمیں دور دور تک نظر نہیں آ رہے۔ نام ہم امام حسین کا لیتے ہیں اور کردار یزید پر زندگی گزارتے ہیں۔ یہ سوال یہ بھی ہے کہ اکثر ابھی بھی آج بہت سارے لوگوں میں اس بات کا علم نہیں ہے کہ کربلا میں جو جنگ ہوئی تھی اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیے کربلا میں جو جنگ ہوئی تھی اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں۔ اسلامی مملکت میں بادشاہ عادل چاہیے، ظالم نہیں چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات، جس گھر کا بڑا شرابی ہو تو بعد کے لوگوں کو شراب سے کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ گھر کا ذمہ داری شرابی ہے۔ جس گھر کا بڑا جواری ہو تو اس پورے گھر کو جوا سے کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ پورا بڑا ہی بگڑ گیا تو چھوٹوں کو کون سنبھالے گا۔ تو ایسے ایک اسلامی نظام ہے کہ جو اسلامی خلیفہ ہوگا وہ اپنی مرضی سے نہیں بنے گا، اسلامی مملکت میں وہ شورا سے بنے گا یا لوگوں کے انتخاب سے بنے گا، یہ ہے۔ اور وہ عادل ہوگا، نمازی ہوگا، شریعت کا پابند ہوگا، جیسے حضرت عمر بن خطاب تھے، صدیق اکبر تھے، حضرت عثمان غنی تھے، مولائے کائنات تھے، کہ ان کا حال یہ تھا کہ اگر جبہ پہن کر کے ممبر پہ کھڑے تو کوئی پوچھ سکتا تھا کہ مال غنیمت میں چادر آئی تو ایک ایک ملی، آپ کا قد تو لمبا ہے، آپ کا یہ جبہ کیسے بن گیا؟ لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا اس کو قتل کر دو، انہوں نے جواب دیا کہ میرے بیٹے کی چادر میں نے لی اور کوئی ماتھے پر شکن نہیں آیا۔ پھر وہ نظام کہ ایک چراغ جلایا، حساب کیا، پھر وہ بجھا دیا، دوسرا چراغ جلایا، اس سے حساب کیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ چراغ تو دونوں ہی چراغ ہے، حساب تو دونوں ہی حساب ہے، آپ نے ایک بجھایا پھر ایک چوپڑا شروع کیا، دوسرا جلایا پھر دوسرا رجسٹر شروع کیا، کیا وجہ ہے، کیا فرق ہے؟ فرمایا میں نے بیت المال کا چراغ جلایا، حکومت کا حساب کیا، جب اپنا پرسنل حساب کرنا ہوا تو میں نے گھر کا چراغ جلایا۔ یہ ہوتا ہے امیر المومنین اور ایسا ہوتا ہے اسلامی بادشاہ، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ ایسا بندہ ہوگا تو ہی وہ بیت المال سے کسی کو کھانے نہیں دے گا۔ عمر ابن عبدالعزیز امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، عید کا دن ہے، گھر میں کپڑے نہیں ہیں بچوں کے، بچوں نے ضد کیا تو کہا دھو کے پہن لو، زیادہ ضد کیا تو کہا اچھا ٹھیک ہے پیسے نہیں ہیں میں جا کر بیت المال میں مانگتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جا کر یہ کہا کہ بھائی 1 مہینے کی تنخواہ پیشگی دے دو، عید کے کپڑے آ جائیں گے۔ بیت المال کا جو ذمہ دار تھا اس نے کہا آپ لکھ دیجئے کہ 1 مہینے آپ زندہ رہو گے تو میں آپ کو پیشگی تنخواہ دیتا ہوں، جب زندہ رہنے کی گارنٹی نہیں تو پیشگی تنخواہ کیسے دوں؟ پلٹ آئے اور فرمایا کہ دھلے ہوئے کپڑوں پہ عید ہو سکتی ہے لیکن حرام کپڑوں پہ عید نہیں ہو سکتی۔ یہ مزاج تھا، یہ ذہن تھا۔ اب آپ بتائیں کہ ایسا مسلمانوں کا بادشاہ اور خلیفہ ہوتا ہے، صدیق اکبر کی طرح صدیق اکبر کی بیوی نے کہا ہم حلوہ کھانا چاہتے ہیں، فرمایا میری آمدنی اتنی نہیں کہ میں حلوہ کھلاؤں، تو کہا کہ آپ جو خرچہ دیتے ہیں ہم نے کچھ اس میں سے پیسہ بچا کے رکھا ہے، کہا اس کا مطلب خرچہ میں بیت المال سے زیادہ لیتا ہوں، جتنا تم نے بچایا اس کا مطلب اتنے میں ہی جو ہے وہ اپنے گھر کا خرچہ چل سکتا ہے۔ کہاں ہے وہ پیسے جو حلوے کے لیے بچائے؟ وہ پیسے لیے اور واپس جا کر بیت المال میں جمع کرائے۔ ایسا ہوتا ہے مسلمانوں کا خلیفہ، یہ آئیڈیل ہے یہ لوگ۔ تو اب یزید جو تھا تو یزید تو ابتدائی جوانی سے ہی اوباش تھا۔ ابن کثیر کو دیکھ لیں جس پر سب متفق ہے، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، حالت سفر میں بھی وہ شراب، حالت حج کے سفر حج میں بھی وہ شراب پیتا ہے، اس نے سفر حج میں بھی شراب نہیں چھوڑا۔ کتنا بھی بگڑا ہوا آدمی ہوتا ہے کم از کم وہ سفر حج میں تو کچھ احتیاط تو کرتا ہے، اس نے سفر حج میں بھی شراب نہیں چھوڑا۔ زنا کا معاملہ الگ، محرمات کے ساتھ نکاح الگ،
जिनके साथ निकाह कुरान ने हराम करार दिया वो उनके साथ निकाह करते हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा को उसने इतनी बड़ी गाली दी, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा, जबकि उम्मतुल मोमिनीन की तौहीन कुफ्र है। ये सब चीज़ें थी। तो अब वो बादशाह बन रहा है, शराबी, ज़ानी, लड़कों के साथ बदफेली करने वाला, बंदरों को नचाने वाला, और उसके बाद जब वो चीतों से खेलने वाला, बांसुरी का शौक़ रखने वाला। तो ऐसा आदमी जब बादशाह बनेगा तो शराब पर पाबंदी कौन लगाएगा? बेनमाजी बादशाह बनेगा तो कोड़े लगाकर लोगों को नमाज कौन पढ़वाएगा? जब बादशाही ज़िना करेगा तो ज़ानियों को सज़ा कौन देगा? क्योंकि इस्लामी हुकूमत अगर हो तो ज़ानी की सज़ा जो संसार करना है, अगर वो शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है तो कोड़े लगाना है। तो जब बादशाही ज़िना करेगा तो कौन सज़ा देगा? तो इमाम इस चीज़ को, इस पस मंज़र को, इस बैकग्राउंड को, इस सब चीज़ों को देख रहे थे कि अगर ऐसे बंदे को कबूल कर लिया गया तो इसका मतलब ये है कि इस्लाम का पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। तो इमाम अली मकाम एहतजाज के लिए खड़े हुए। अब खड़े हुए उन्हें पता था कि इतनी बड़ी फ़ौज से मैंने मुकाबला नहीं करना, लेकिन एहतजाज दर्ज कराना था और यजीद का चेहरा बेनकाब करना था। शहादत तो हो गई उनकी और उनके बाद तक पूरे आवान व अंसार की, लेकिन यजीद का चेहरा बेनकाब हो गया, यजीद गलत है। फिर इमाम अली मकाम के इस एहतजाज पर लोगों को जुर्रत मिली कि जो लोग बयात कर चुके थे उन्होंने भी यजीद को रिजेक्ट कर दिया, और आज तक किसी ने यजीद को कबूल नहीं किया। तो ये गोया कि जानों की हिफाजत की जंग नहीं थी, ये मिशन की हिफाजत की जंग थी। और जंग जीतना उसको कहते हैं कि जो मकसद में जीतता है। इमाम हुसैन सर कटाकर मकसद में कामयाब हो गए और वो सर काट कर भी मकसद में नाकाम हुए। ये असल जंग की बुनियाद है, जंग की असल, वरना हुकूमत लेना मकसद नहीं था। जिन्होंने हुकूमत दे दी अब वो क्या ले सकते? तो ये मकसद था, दीन का तहफ़्फ़ुज़ और दीन की हिफाज़त। अस्सलाम वालेकुम। साहब सवाल है ऐसा है कि वाक़या करबला का हिंदुस्तान से क्या ताल्लुक़ है? इस सरज़मीन से या बर्र आज़म एशिया से? इमाम अली मकाम का हिंदुस्तान से क्या ताल्लुक़ है? देखिए, पहले तो इस्लाम का हिंदुस्तान से बड़ा पुराना ताल्लुक़ है कि इस्लाम तो सबसे पहले आया ही हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारा अक़ीदा है हर मुसलमान का कि जन्नत से आदम अलैहिस्सलाम को जो ज़मीन पे उतारा गया है, तो वो जब वो हिंद की ज़मीन पर उतरे हैं तो सबसे पहली अज़ान यहाँ हुई है, सबसे पहली नमाज यहाँ हुई, सबसे पहले कलमा यहाँ पढ़ा गया है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। अब ये है कि बाज़ मौरख़ीन ने ये लिखा है कि इमाम अली मकाम अला जद्दी वालिस्सलाम ने जब करबला में मामलात को बढ़ते देखा तो आपने ये भी फरमाया कि मुझे रास्ते में क्यों रोकते हो? आप लोग एक काम करो कि मुझे यजीद से डायरेक्ट मिलने दो ताकि मैं उससे डायरेक्ट गुफ्तगू करूं, बात करूं और बात करके अपना मौक़िफ़ उसके सामने रखूं। ये लोग जो कहते हैं कि वो बैत करने की बात करते, बैत के लिए तो वो आखिरी तक तैयार नहीं हुए। वो चाहते थे कि मैं अपना मौक़िफ़ रखूं, अपनी बात रखूं और उससे मैं गुफ्तगू करूं कि वो उसका अहल नहीं है जो भी चीज़ है। और अगर तुम ये मंजूर नहीं करते हो, बाज़ मौरख़ीन का ये कौल है, सबका नहीं, कुछ लोगों ने इससे इख्तिलाफ भी किया है कि अगर तुम ये मंजूर नहीं करते हो तो फिर एक काम करो, मुझे वापस मक्का पलट जाने दो। अगर ये भी मंजूर नहीं है तो तीसरी बात ये है कि मुझे हिंदुस्तान चले जाने दो, मैं वहाँ जाकर अल्लाह के दीन की खिदमत करूँगा और जब वो लोगों के सामने अल्लाह का दीन रखूँगा, क्योंकि हिंदुस्तान इस वक्त कुफ्रिस्तान बना हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ जाकर अल्लाह का दीन पहुँचाऊँ और पूरे ईमान फैलाऊँ। बाज़ लोगों ने ये भी कहा कि हिंदुस्तान का नाम नहीं लिया, बल्कि ये कहा कि मुझे किसी कुफ्र के इलाके में चले जाने तो मैं वहीं जाकर के अल्लाह के दीन पर काम करूँगा। आपका इशारा जिस तरफ है कि कुछ लोग यहाँ से वहाँ गए, गालिबन मुझे ऐसा लगता है कि मुख्तार भाई के सवाल में शायद ये है कि कुछ लोगों ने ये मशहूर कर रखा है कि यहाँ के लोग जो थे, यहाँ के हिंदुस्तान के रहने वाले, वो करबला में इमाम अली मकाम अला जद्दी वालिस्सलाम की मदद को वहाँ पहुँचे। इस यानी कि चूँकि ये तारीख़ी रिवायत है और इससे कोई इख्तिलाफ भी कर सकता है, लेकिन यहाँ मेरा कहना ये है कि अगर हम तारीख़ को दरायत पर परखते हैं तो हमें सही नज़र नहीं आती। उसकी वजह यह है कि 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन करबला में थे, पहुँचे 2 मुहर्रम को करबला में, और 10 मुहर्रम को शाम से पहले पहले आपकी शहादत हो गई। तो ये कुल दिन बनते हैं कितने? 2 से लेकर के 10 तक 8 दिन बनते हैं। तो 8 दिन में कौन सा कासिद था वो जो करबला से हिंदुस्तान आ गया? बल्कि वो करबला में इतना उनको घेर लिया गया था
کہ نہ उनका कोई आदमी बाहर जाने दिया गया और ना किसी बाहर वाले को आकर उनसे मिलने दिया गया। करीब में जो देहात था, बल्कि करीब में सबसे करीब जो बड़ा शहर था वो कूफा था, तो कूफा भी ये बात नहीं पहुंच सकी। इमाम अली मकाम के करबला में मौजूद है, बल्कि शहादत तक भी कूफा में नहीं पहुंच सकी। जब उन्होंने ऐलान किया कि लूटा वो जो लोग डाकू थे उन्हें हमने मार डाला है, अब उनके सरों को लाया जा रहा है, तो कूफा वाले छत पे चढ़ के देख रहे थे कि डाकू कौन है, और वो राह मारते थे तो उनको लाया गया। तो जब ये बात करबला से कासिद कूफा तक न पहुंचा सका, इन 8 दिनों के अंदर इतना उन्होंने सख्त पैरा रखा था, तो वो कौन सा कासिद था जो करबला से हिंदुस्तान आ गया। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ लोगों ने करबला के वाक़यात में गुलू भी किया, बहुत गुलू किया है, तो उन रिवायतों को दरायत पर हमें परखना होता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ के ब्राह्मण कुछ हुसैनी ब्राह्मण कहलाते हैं, इस तरह की बात भी लोगों ने की है। मैं समझता हूँ कि अगर इसको दरायत पर परखे तो हर अक्लमंद इंसान समझ सकता है कि इसकी हकीकत क्या है, और जो लोग ये ऐसा नज़रिया रखते हैं वो नाराज़ नहीं हो। एक तारीखी बात है जिस पर मैंने अपनी राय का इजहार किया है, और लोग इससे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। यहाँ का कोई बंदा मदद के लिए नहीं गया। देखिए, उन्होंने मदद भी लोगों की नहीं मांगी, इसलिए कि वो तो अपनी आवान और अंसार को कह रहे थे कि ये मेरे खून के प्यासे हैं, और नाना ने फरमाया था कि तुम करबला में शहीद हो जाओगे, तो ये मुझे शहीद करके इनका मकसद पूरा हो जाएगा, और मैं शहीद होकर भी मेरा भी मकसद मैं पूरा कर लूँगा कि मैंने एहतजाज जो दर्ज कराना है, जो उनका चेहरा बेनकाब करना है, वो तो हो जाएगा। तुम सब चले जाओ, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जन्नत में ले जाऊँगा, तुम सब चले जाओ। वो अपनी आवान और अंसार को जब भेज रहे थे कि तुम सब चले जाओ, और कहते थे कि मेरे रिश्तेदार का एक एक आदमी हाथ पकड़ ले और ले करके वो चला जाए, मैं कोई मुआखज़ा नहीं करूँगा। तो जब तुम मौजूद लोगों को भेज रहे थे तो उन्होंने किसी को मदद के लिए क्या बुलाना था? उन्होंने कभी किसी को मदद के लिए बुलाया ही नहीं। अगर वो एक आवाज़ देते तो इतनी बात तो है मुख्तार भाई कि जब 14 सदियाँ बीत जाने के बाद उनके जलसे में एक आवाज़ पर हज़ारों लाखों लोग जमा हो सकते हैं, तो उनकी आवाज़ पर कितने लोग जमा हो सकते थे? लेकिन उन्होंने किसी को बुलाया नहीं, इसलिए कि वहाँ जंग मकसद नहीं थी, बल्कि चेहरे यजीद बेनकाब करना मकसद। ये हिंदुस्तान में जो शहीदान करबला से बेलौज मोहब्बत होती है, मोहब्बत करने वाले करोड़ों हिंदुस्तानियों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आखिरी सवाल है। शुक्रिया के साथ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मुहिब्बान अहले बैत को मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हम करबला को आइडियल बनाएं। किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही है, जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। आज ज़मीर बिक रहे हैं, ज़मीर ख़रीदे जा रहे हैं, तो ऐसे वक्त में हमें चाहिए कि हम करबला को आइडियल बनाएं, हक़ के साथ ज़िंदा रहें और हक़ का प्रचार करें, और अमन के साथ ज़िंदा रहें, अमन का प्रचार करें। और इमाम अली मकाम ने करबला से हमें जो पैगाम दिया है, देखिए करबला का पैगाम कितना खूबसूरत है। करबला में अगर हम देखते हैं तो हमें हर उन्वान नज़र आता है। एक बहन का भाई के साथ क्या ताल्लुक़ होना चाहिए, ये सैयदा ज़ैनब और इमाम हुसैन के ताल्लुक़ से हमें नज़र आता है। एक बेटे का बाप के साथ क्या अंदाज़ होना चाहिए, इमाम अली अकबर और इमाम हुसैन के दरमियान नज़र आता है। भाई का भाई के साथ क्या ताल्लुक़ होना चाहिए, अगरचे वो सौतेला हो, हज़रत अब्बास अलमदार और इमाम हुसैन को हम देखते हैं। मियाँ बीवी के ताल्लुकात कैसे होना चाहिए और इमाम हुसैन, यानी करबला में हमें उन्वान नज़र आता है। फिर उसके बाद आप देखें कितनी मुश्किल है, कितनी मुसीबत है, भूखे पेट है, प्यासे हैं, हर मुसीबत है, लेकिन आप नहीं देख सकते कि नमाज कोई टल रही है। टलना तो दूर की बात है, बेवक्त भी नमाज पढ़ी नहीं जा रही। यानी ये सारी चीज़ें हमें करबला में, यानी करबला से हमें दीन सीखने को मिलता है, करबला से हमें सच्चाई सीखने को मिलती है। वहाँ धोखा नहीं हो रहा है, वहाँ दगा नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें। और जिस नशे के ख़िलाफ़ इमाम हुसैन उठ कर खड़े हुए, बल्कि अगर हम ये कहें तो बेजाना होगा कि इमाम हुसैन यजीद के ख़िलाफ़ नहीं थे, बल्कि किरदार यजीद के ख़िलाफ़ थे। यजीद के यहाँ नशा था, ज़िना था, म्यूज़िक थी, करप्शन था, बैतुल माल का माल खा जाना था, तो इमाम हुसैन इसके ख़िलाफ़ उठ कर खड़े हुए। तो हमें चाहिए कि वो जिस किरदार के ख़िलाफ़ उठ कर के खड़े हुए, हमें भी उस शख्स से और उसके किरदार से, उसके कैरेक्टर से अपने आप को बचाना चाहिए। और इमाम अली मकाम ने जो किरदार और कैरेक्टर पेश किया है, हमें उस पर अमल करना चाहिए और प्यार मोहब्बत का पैगाम आम हो, इबादतों पर अमल हो, इस्लाम के करीब आएँ, दीन के करीब आएँ। करबला में ये पैगाम देता है, अगर दीन के नाम पे मर मिट जाओगे तो दीन तुम्हें मरने नहीं देगा, तुम हमेशा ज़िंदा रहोगे।
और दीन मिटाने के लिए उठ करके खड़े हो जाओगे तो ज़िंदा रहने के बाद भी तुम्हारा नाम और निशान मिट जाएगा। तो हमें दीन के लिए जीना है, दीन के लिए मरना है। और हर दौर में जिसको भी इनकलाब की कहीं से किरण मिली है तो वो करबला के बाद हमेशा करबला से किरण मिली है। सलाहुद्दीन अय्यूबी को आप देख लें, इसी तरह से उनके बाद जो जो लोग खड़े हुए हैं उन सब की ज़िंदगी को आप देख लें कि उन्होंने करबला से मिशन लिया। औलिया अल्लाह ने करबला से मिशन लिया कि तुम अकेले ही अगरचे हो लेकिन हक़ का पैगाम लेकर उठकर खड़े रहो, बाद में लोग तुम्हारे साथी और तुम्हारे मिशन के साथी बन ही जाएंगे। यही पैगाम करबला में देता है। और आशिकान अहले बैत को मेरा यही पैगाम है कि ज़बान के मोहब्बती मत बनो, ज़बान के दावेदार मत बनो, किरदार के गाज़ी बनो। जिस किरदार की हिफाजत के लिए इमाम ने सब कुछ लुटाया उसी किरदार को इख्तियार करो। शरबत और खिचड़े वाले सिर्फ हुसैनी मत बनो बल्कि किरदार वाले हुसैनी बनो, ताकि जो हमें लोग देखे तो पुकार उठे। जब 1400 साल के बाद हुसैनियों की ये शान है तो इमाम हुसैन के किरदार की शान का आलम क्या होगा। ये पैगाम आज की इस कॉन्फ्रेंस में हम आपको इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम